और शुभकामनाएं देते हैं। मान्य सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset political uncertainties and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various जो भी प्रशासनिक कदम है, जो भी स्कीम्स हैं, जो अंतरिम बजट में हमने जिसकी घोषणा की थी, वो सभी सही रास्ते पर हैं और इसको लेकर जो आवंटन है वो किया जा चुका है। बजट 3 और हम अब पूरे साल और आगे के समय के लिए हम खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं रोजगार को लेकर के, कौशल विकास को लेकर, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उन पर फोकस कर रहे हैं और हम 5 स्कीमों पर प्रधानमंत्री के योजना का ऐलान कर रहे हैं जिससे कि रोजगार बढ़ेगा, कौशल विकास बढ़ेगा और इसके अलावा अन्य मौके भी बढ़ेंगे ताकि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के मौके अगले 5 साल में मिलेंगे।
with a central outlay of और इसके लिए हम जो आवंटन कर रहे हैं वो 2 लाख करोड़ रुपए का I है will speak about them और shortly. मैं इसके बारे में अब बहुत While जल्द more इसमें details बताऊंगी will be seen और इसमें in कुछ the और annexure. विस्तृत जानकारी भी जो है वो आप This year, एनेक्शन में देख पाएंगे। I've made इस a साल provision हमने of 1.48 lakh 1.4 लाख करोड़ रुपए 1.48 lakh 1.488 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हमने skilling शिक्षा budget और priorities. कौशल विकास पर दिया है। The people have given a बजट की जो unique प्राथमिकताएं हैं opportunity हमने to our जनता को government to हमने take the country हमें on the जनता path ने of बहुत strong ही development अच्छा मौका and दिया है all-round ताकि हम तेज prosperity. विकास और interim समग्र budget, विकास की ओर आगे we बढ़ सके। promised अंतरिम to बजट में present हमने वादा किया a था कि detailed हम roadmap एक for our विस्तृत pursuit of रोड मैप Viksit प्रस्तुत Bharat करेंगे विकसित भारत in को line लेकर with के the strategy और उसी set out रणनीति in के the interim तहत budget. हमने जो अंतरिम This बजट में जो बातें कही थी envisages इस बजट को भी sustained efforts on हम the following स्थिर 9 तरीके से आगे बढ़ेंगे priorities और हम ये for हमारी 9 generating प्राथमिकताएं हैं ample opportunities जिससे कि for all. ज्यादा से ज्यादा सभी के लिए Number one, मौके बन सकेंगे। सबसे पहला productivity and resilience उत्पादकता in और agriculture. कृषि Number two, को काफी हम employment मजबूत and बनाने की skilling. कोशिश करेंगे, लचीला बनाने की Number कोशिश three, करेंगे। रोजगार और कौशल inclusive विकास पर human दूसरी बात तो resource हमारी फोकस development रहेगी। and social तीसरा हमारा ध्यान justice. सामाजिक Four, न्याय के साथ manufacturing and हम services. आगे Five, बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और urban सर्विसेज पर हमारा फोकस है। Six, पांचवा energy शहरी विकास पर हम security. ध्यान देंगे। छठा हम Seven, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित infrastructure. करेंगे। सातवां हम आधारभूत Eight, ढांचे पर ध्यान देंगे। innovation, आठवां हम research and इनोवेशन और development. रिसर्च के साथ साथ हम And विकास पर nine, ध्यान देंगे और नौवीं next बात जो होगी generation वो reforms. वो नए Subsequent जमाने के हिसाब से budgets सुधार पर हम ध्यान will देंगे। build on these हम इसको and लेकर add के more priorities and हम actions. आगे A जो more कदम उठाए जा रहे हैं उसकी detailed जानकारी देंगे। इसको लेकर will के be हम carried विस्तृत out जानकारी देंगे as part of the और economic policy आर्थिक जो framework नीतियां हैं about उसके which ढांचे को हम I will आगे बढ़ाएंगे speak इसी तरह से later in this speech. और हम इस बजट में आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी This देंगे। budget details ये बजट some में of the specific हम actions कुछ खास to be जो initiated in कदम the उठाए current जा रहे year हैं towards वो हम fulfillment बताएंगे। of these इसका मकसद priorities इन जो with प्राथमिकताओं को potential पूरा for करना है transformative ताकि changes. हम पूरी तरह से The जो budget बदलाव also है covers उसको अमल में ला some of सके। the previously इस बजट में made कुछ और announcements बातें भी शामिल हैं जो with हमने पहले intent to ऐलान किए थे strengthen them जिसका मकसद and साफ है step कि up हम their उन बदलावों को उन ऐलानों को for सही तरीके से लागू कर सकें और उन्हें our तेजी से journey towards the goal of हम हमारा जो Viksit मकसद है Bharat. विकसित भारत की ओर ये कदम हमें Priority सुनिश्चित one, करेगा। हमारी प्राथमिकता productivity पहली and resilience प्राथमिकता in उत्पादकता agriculture. और लचीलापन कृषि के क्षेत्र में बढ़ाने की। हम कृषि क्षेत्र को बदलाव करना चाहते हैं, हम रिसर्च को बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कृषि के क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ाया है ताकि हम जो है उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और साथ ही जलवायु के साथ हम जो है तालमेल बिठा करके आगे बढ़ सके। इसके लिए जो फंडिंग है वो उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाया जाएगा, चाहे सरकार और बाहर के जो भी विशेषज्ञ हैं उनको जोड़ा जाएगा और ऐसे रिसर्च में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नई जो वैरायटी है वो लाई जाएगी और कई ऐसी वैरायटीज जो कि जलवायु से जुड़ी हुई हैं उनको लाया जाएगा। अलग अलग जो उत्पाद हैं उनको लाया जाएगा और किसानों को इससे मदद मिलेगी। नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को हम फोकस दे रहे हैं। अगले 2 साल में 1 करोड़ जो किसान हैं उनको पूरे देश में प्राकृतिक खेती की ओर हम ले जाएंगे और इसके लिए उनको सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराया जाएगा, ब्रांडिंग उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे में जो अमल में लाया जाएगा, जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान हैं और जो पंचायत है उनकी सहायता से ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा और बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। Missions for pulses and oil seeds. दाल और तिलहन के लिए हम मिशन मोड में आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि तिलहन पर हम आत्मनिर्भरता हासिल करें। इसके लिए हम उत्पादकता और भंडारण के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान देंगे और जैसा कि हमने अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया था, एक रणनीति को हम आत्मनिर्भरता के जरिए हासिल करेंगे। तिलहन जैसे कि सरसों, बादाम, मूंगफली, सोयाबीन और साथ ही सूरजमुखी का उत्पाद जो है इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो सब्जियां हैं उनकी सप्लाई चेन पर भी हम ध्यान देंगे।
जो सब्जियों का उत्पादन है उसके लिए क्लस्टर बनाया जाएगा और ऐसे में ध्यान रखा जाएगा कि जो अधिक उत्पाद वाले क्षेत्र हैं उन पर उनके नजदीक होगा। हम इसमें कोऑपरेटिव को जोड़ेंगे, स्टार्टअप को इसमें जोड़ेंगे और ताकि सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके, ताकि जो भंडारण और संग्रहण है वो सही तरीके से किया जा सके। और कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर हमारा फोकस रहेगा। और हमने इसको लेकर जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था वो काफी सफल रहा है और हमारी सरकार जो कि राज्यों के साथ साझेदारी करके इसे सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, खासतौर पर खेती में। और इससे किसानों को उनके जमीनों को 3 साल के लिए जोड़ा जाएगा। इस साल की अगर बात की जाए तो डिजिटल क्रॉप सर्वे खरीफ के लिए कराया गया है और इसको 400 जिलों में इस साल इसे लागू किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा और उनके उत्पाद को लाया जाएगा। फार्मा और लैंड की जो रजिस्ट्री है उसमें इसे शामिल किया जाएगा। जन समर्थित किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी 5 राज्यों में। श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, इसके अलावा जो श्रिम्प है उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि जो समुद्री उत्पाद होता है, समुद्री भोजन होता है, उसको बढ़ाया जाएगा और इसकी फार्मिंग, इसका जो उत्पादन है ये सुनिश्चित करने के लिए इसका एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए नाबार्ड के जरिए इसे कराया जाएगा। राष्ट्रीय कोऑपरेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। हमारी सरकार एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी ताकि सही तरीके से और सही समय पर विकास किया जा सके। जो भी सहकारी समितियां हैं, सहकारी क्षेत्र है, उसका विकास हो सके और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको तेजी से बढ़ाया जा सके, जिससे कि रोजगार के मौके बन सके बड़े पैमाने पर। यह सुनिश्चित किया जाएगा और यह हमारा लक्ष्य होगा। इस नीति का लक्ष्य यही होगा कि रोजगार के मौके हों और इस साल के लिए हमने 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रखा है कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए। Priority 2, और इसमें हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी कि रोजगार और कौशल विकास, ऐसे रोजगार जिससे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे। हम 3 स्कीम्स को शुरू करने जा रहे हैं जिससे कि रोजगार का मौका अगर बनता है तो उससे फायदे मिलेंगे। और इस सम का EPFO में जो कि निबंधन होता है इस पर हमारा फोकस रहेगा और पहली बार जो लोग रोजगार पाएंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें जो नियोक्ता है उनको भी शामिल किया जाएगा। पहली जो स्कीम है इसमें फर्स्ट टाइमर स्कीम है, इसमें जिसमें सभी जो लोग पहली बार कार्य क्षेत्र को ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको 1 महीने का वेतन दिया जाएगा और ये सभी सेक्टर्स में लागू किया जाएगा। और इसमें DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 1 महीने की जो सैलरी है वो 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 किस्तों में दी जाएगी, EPFO में शामिल की जाएगी। इसमें जो पात्रता की सीमा होगी वो लगभग 1 लाख रुपए प्रति महीने तक की होगी। इस स्कीम से ये उम्मीद की जा रही है कि 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को इससे फायदा मिलेगा। स्कीम बी की अगर बात करें तो रोजगार मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कैसे बढ़े उस पर हम ध्यान देंगे। इसमें अतिरिक्त जो रोजगार के मौके होंगे उसको हम पुरस्कृत करेंगे और जिसमें पहली बार के जो कर्मचारी होंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। सीधे ये कर्मचारी को और कर्मचारी को नौकरी देने वाले नियोक्ता को भी मिलेगा। EPFO के कंट्रीब्यूशन के माध्यम से शुरुआत के 4 साल में फायदा मिलेगा और इस स्कीम से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा जो पहली बार वे रोजगार पाएंगे और इसके अलावा उनके रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को भी फायदा होगा। स्कीम सी की अगर बात करें तो इसमें जो नियोक्ता है यानी जो नौकरी दे रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के सभी नियोक्ताओं को फायदा मिलेगा। 1 लाख वेतन वाले लोग जो हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार इसमें एम्प्लॉयर्स को 3,000 रुपए प्रति महीने रीइंबर्स करेगी यानी वापस करेगी अगले 2 साल के लिए उनके EPF के क्षेत्र में वापस किया जाएगा। इसमें इस स्कीम से
additional employment अतिरिक्त रोजगार को पुरस्कृत किया जाएगा और 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। Participation of और women इसमें in जो the workforce. महिलाओं की भागीदारी We will facilitate कार्य क्षेत्र में बढ़ higher सके, participation हम ये सुनिश्चित of करेंगे women in कि the महिलाओं workforce की through setting up of working भागीदारी women काफी ज्यादा hostels बढ़े। इसके लिए in हम विमेंस हॉस्टल collaboration बनाएंगे, with industry इसके लिए हम and जो establishing creches. इंडस्ट्री है उनके साथ In सहयोग addition, करेंगे। the इसके अलावा